उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा नाहि सिंहस्य सूक्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. Hello students, this is Mona Yadav from MMP International School, Rajpura. As you all know, we are constantly making efforts through our online preparation. There are two ways of education. First one is modern education way of West and other is our golden past heritage, means our culture. Both are attractive, but MMP group of institutions decide to choose a better way, that is the modern education way based on our culture. Our main motive is to provide quality education and to develop a quality student with manners so that they become good citizens of India. So in our last lecture, we started our map work and today we will discuss our remaining states. So let's start today's classes. Let's start today's classes. Below Bihar, we have Jharkhand, which was earlier part of Bihar and its capital is Ranchi. Then we have West Bengal on the right side of Jharkhand and its capital is Kolkata. Towards the northeastern states, we have the total of 7 sister states in northern India. Firstly, we have Tripura. So the capital of Tripura is Agartala. Okay, means firstly we have Tripura and its capital is Agartala. Next one is Mizoram and its capital is Aizawl. Above Mizoram, you can see here it is Manipur and its capital is Imphal. Above Manipur, we have Nagaland and its capital is Kohima. Above Nagaland, we have Arunachal Pradesh at the top and its capital is Itanagar. Arunachal Pradesh, Itanagar. Then we have Assam. You can see and its capital is Dispur. Then we have Meghalaya and its capital is Shillong. Here at the top we can see a small state, that is Sikkim, and its capital is Gangtok. Coming towards the south, we have Odisha on eastern coast of India and its capital is Bhubaneswar. So the capital of Odisha is Bhubaneswar. Then we have Chhattisgarh, which was also part of Madhya Pradesh and its capital is Raipur. In 2014, India got 29 states as with Telangana, which was earlier a part of Andhra Pradesh. Then Hyderabad is the capital of Telangana and Andhra Pradesh got its new capital, that is Amravati. Now we have a smaller state in India, that is Goa, and its capital is Panji. Then we have Karnataka and its capital is Bengaluru. Earlier it was known as Bangalore, but the name was changed as Bengaluru. So the capital of Karnataka is Bengaluru. Then we have Kerala in the south and its capital is Thiruvananthapuram. The capital of Kerala is Thiruvananthapuram. After that, on the right side of Kerala, we have Tamil Nadu and its capital is Chennai. So today we have covered all the 28 states in Indian political map. Okay, so you have to fill the map, all the states with their capitals and learn them. Thank you, students. Good morning, students. So how are you all? I hope you are all fine and fit at your home and doing study very well. So let's start. I am Shri Yadav. Welcome you again to our YouTube channel of online classes. So today's our reasoning topic is odd one out. Odd one out is we have to pick a different one from all of these
So we are given 4 options, and from these out of 4 options there is one that is different from all the 3 options. So let's start. So students, let's start with our topic odd one out. As I told you already that odd one out is we have to pick a different one from all the 4 options. So let's start with our first question. Find the odd word या letter या number from. This first is algebra, geometry, trigonometry and mathematics. Now as you can see that these are the 3 terms that will come in the mathematics subjects. This will be a subject and these are the topics in mathematics. ठीक है. So option क्या हो जाएगा हमारे पास different mathematics because these are all will be in mathematics. ठीक है. ये सभी के इसमें आते हैं mathematics के अंदर आते हैं. Find the odd one या letter या numbers from these options. Now 85, 136, 34, 85, this and this. Firstly अगर हम करते हैं ये odd है, this will be even. Now even, odd, even, odd and odd, even. तो यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा जिसमें 3 सिमिलर हो और 1 डिफरेंट हो. देन माइनस करते हैं हम. अगर माइनस करा यहाँ पे हो गया 51. नाउ नेक्स्ट में अगर हम माइनस करते हैं सो दैट विल बी ऑल्सो 51. नाउ माइनस इसमें करते हैं तो 1 and 5 अगेन 51. सो इनका माइनस अब हो जाएगा हमारे पास 9. 15 minus 6 is, ठीक है. सो दैट विल बी द odd one because all of these the subtraction will be 51 but here we got a 99, so that will be the odd one. Now next is find the odd one. So 64, 125, 225 and 216. Now firstly हम क्या देखते हैं, हम हमेशा even या odd वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ देखो 4 this will be even, odd and this will even, so there is no pattern. So prime number and composite number try करते. This will be a prime number. 125 is factor of 525, so this will also a prime number, this will also a prime number and this will also a prime number. Now square पे जाते हैं. 8 का square होता है ये. This will be 5 का cube होता है. This will be 15 का square and this will 6 का cube. तो यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है. So this will be also, this will 5 का क्यूब. ठीक है. ये क्या हो गया 15 का स्क्वायर एंड दैट विल बी 6 का क्यूब. एंड 8 के स्क्वायर के साथ साथ 64 जो होता है वो 4 का क्यूब भी होता है. 4 का क्यूब मतलब 4 4 and 4. So 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64. So all rest of the parts other than 225 are cubes of 4, 5 and 6, so that will be the odd one. ठीक है. Now next is find the odd one. Here we are given these. So firstly हम क्या देखेंगे, यहाँ पे even नहीं करते हैं. even, odd, even, odd. तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है. Then subtraction करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमें दिख रहा है सारे नंबर्स डिफरेंट है यहाँ पे. सो हम क्या ट्राई करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं. सो 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे दैट विल बी रिमाइंडर विल बी 0. 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे. एज यू कैन सी लास्ट डिजिट इज नॉट 5, सो दिस विल नॉट बी fully divisible by 521. There will be some remainder. Now next is here we can see that all the last 3 digits will not divisible by 8, so that will also not divisible by its factor. Now next is 543 and 7 से अगर हम divisible करते हैं तो 7 जा 49, 5 and 3. So this will also not divisible by 7. So here odd one out is this one because these two factors are two multiples या बोल सकते हैं factors of each other, not each other. 6 is a factor of 612. ठीक है. Now next is find the odd one out from these options. Now 862, 835. तो firstly हम क्या करेंगे, even and odd. So this will be even, this odd and odd. So this option
करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड ओड वन आउट। सो ओड वन आउट में अब हमारे पास यहाँ क्या है, 1, 26, 3 and 24. This will be 2 and 25 and 4 and 22. ठीक है। So as you can see that these are 126. That will be the, अगर हम रिवर्स प्रोसेस में उसको काउंट करते हैं तो Z will be at the place of 26. So मतलब यहाँ पे ये एक दूसरे के क्या लिखे हुए हैं, इनवर्स लिखे हुए हैं। C जो होता है थर्ड पे आता है, तो लास्ट में थर्ड से क्या आता है, X। B सेकंड पे होता है, लास्ट में अगर हम रिवर्स में करते हैं तो लास्ट से क्या आता है हमारे पास, दिस विल बी एट द सेकंड प्लेस। D फोर्थ पे आता है, लेकिन लास्ट से अगर हम फोर्थ प्लेस पे देखते हैं तो वहां आता है W, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, ऑप्शन V। सो दैट विल बी द ओड वन आउट। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड ओड वन आउट E, 5 and T. Now we know that E is at the place of 5. Now next O, but O is not at the place of 16, so that will not be the main criteria. Now next move to, this will be at the place 5, 20. O is at the place of 15, S 19, U 21, A 1 पे होता है, I 9 and 13। ठीक है। सो अगर हम इनका डिफरेंस भी करते हैं तो भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, बिकॉज इनका डिफरेंस 15, दैट विल नॉट हेयर, 19 4, यहाँ से अगर हम करेंगे -20 और यहाँ से 4, सो यहाँ पे भी नहीं बन रहा। तो हम अल्फाबेट में ही देखते हैं। अल्फाबेट में देखो अब यहाँ पे क्या है, E is a vowel and T is a consonant, O is a vowel, S is a consonant, U is a vowel, A is also a vowel, I vowel, लेकिन M क्या है, consonant। So here other than U3A, all of these have one vowel and one consonant, but here we are 2 vowels, so that will be the odd one. So that is all for today. Thank you. Have a nice day. Good morning students, I am Rita Sharma. Welcome you in chemistry classes from MLP School राजपुरा। बच्चों, हमने एक नई मुहिम स्टार्ट की है जिसमें हम आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक NTSC, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, NDA। तो बेटा इस मुहिम में आप हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें और अपनी प्रिपरेशन करें। आपको जो हम कोर्स करवा रहे हैं, जो सिलेबस करवा रहे हैं, उसके साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी आपको करवाएंगे, ताकि फ्यूचर में, इन फ्यूचर जब आप एग्जाम फेस करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन उस टाइम पे हो, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सके, अच्छी आपकी रैंक आए। गुड लक बेटा। लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऐसी मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हो रूम टेम्परेचर पे। तो बेटा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम, पोटासियम, मरकरी एंड ब्रोमीन। तो बेटा ब्रोमीन तो नॉन मेटल है और इसमें मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, देयरफॉर आंसर विल बी मरकरी। ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा बेटा, when the liquid is spun rapidly the denser particle are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top. This principle is used in, पहले क्वेश्चन को समझिएगा बेटा। when liquid is spun rapidly मतलब लिक्विड को फास्टली जब रोटेट करवाया जाता है, स्पीडली, जैसे हम कर्ड से जो मक्खन निकालते हैं उस टाइप से, तो डेंसर पार्टिकल जो हैवी वेट के पार्टिकल है वो तो नीचे रह जाते हैं, लाइट वेट के पार्टिकल लाइक मक्खन ऊपर आ जाता है। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन। 4 टेक्निक दे रखी है, सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन एंड टनलिंग। तो बेटा ये सारी ये जो टेक्निक दे रखी है ये मिक्सचर के सेपरेशन की टेक्निक। बच्चों इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ऐसी नॉन मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हो रूम टेम्परेचर पे। तो बेटा अभी अभी हमने मेटल का नाम पढ़ा था कि मेटल कौन सी, मेटल तो होती है मरकरी। और ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है
तो यहाँ पे पोटाशियम, सोडियम और मरकरी, ये तो 3 मेटल है। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो बच्चों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर आंसर विल बी द बी, दैट इज ब्रोमीन। ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलोइड। बेटा मेटलोइड वो एलिमेंट्स है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ना तो कंप्लीटली मेटल ना कंप्लीटली नॉन मेटल। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन दे रखे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टंगस्टन। तो बेटा इसमें से बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये तो 3 मेटलॉइड है और टंगस्टन एक हार्ड मेटल है जो बल्ब के फिलामेंट बनाने में काम आता है। देयरफॉर इसका आंसर होगा डी, दैट इज टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, इफ वी पुट कैम्फर इन एन ओपन कंटेनर, अगर हम कैम्फर को, कपूर को नेफ्थलीन बोल्स, जिसका केमिकल नेम है नेफ्थलीन, ओपन कंटेनर में रखते हैं, इट्स अमाउंट कीप ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू फिनोमिना, वो धीरे 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 खत्म होते चला जाता है। आपने कैम्फर्स बात देखी होंगी, कपूर की गोलियां, धीरे धीरे वो बेटा सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। देयरफॉर आंसर विल बी द डी, दैट इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve and remain suspended throughout the solvent and solute particle can be seen with naked eyes is known as। ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल मिक्सचर में सस्पेंड रहते हैं और उनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, तो बेटा ऐसा मिक्सचर कहलाता है सस्पेंशन। आपने देखा होगा चाक पाउडर हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो पार्टिकल चौक के सस्पेंडेड होते हैं, थोड़ी देर आप रखेंगे तो सोल्यूट अलग सोलवेंट अलग, मतलब चौक पाउडर अलग और वाटर अलग, और नेक्ड आई से हम देख भी सकते हैं इस प्रोसेस को। इसके अलावा सैंड इन वाटर, आप मिट्टी वाटर में मिलाओगे तो भी सैंड के पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। ये जो मिक्सचर है ये बेटा क्या कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है। देयरफॉर आंसर विल बी द डी, दैट इज सस्पेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन टिंचर ऑफ आयोडीन फाइंड आउट सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है बेटा, ये एंटीसेप्टिक होता है, जैसे डेटॉल, सेवलॉन काम करते हैं वाउंड्स, कट्स को साफ करने के लिए, वैसे ही टिंचर ऑफ आयोडीन है। और टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, आयोडीन को अल्कोहल में डिजोल्व करके घोल करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो बच्चों इसमें आयोडीन तो सोल्यूट का काम करता है और अल्कोहल किसका काम करता है बेटा, सोलवेंट का। देयरफॉर इसका आंसर होगा बी। नो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, द कंटिन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन ए डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड एज। तो बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें सोलवेंट को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, सोल्यूट को डिस्पर्स फेज कहते हैं। जैसे हमने एक मिक्सचर बनाया, किसका मिक्सचर बनाया हमने, कोलोइडल बनाने के लिए मिल्क जो है, मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन ही होता है, या सोप को हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया वो भी कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो इसमें बेटा जो पार्टिकल है ना जिगजैग, जिगजैग का मतलब होता है इधर उधर घूमते रहते हैं रैंडमली, कभी इधर कभी उधर। तो इसको टेक्निक को, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं ब्रोनियन मूवमेंट। देयरफॉर आंसर विल बी द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, जिसको ब्रेक नहीं कर सके सिंपलर सब्सटेंस में बाय फिजिकल और केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड से जिसको सेपरेट ना कर सके, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा प्योर सब्सटेंस क्या कहलाता है। तो बेटा कंपाउंड में तो एक से ज्यादा एटम होते हैं, मॉलिक्यूल में भी एक से ज्यादा एटम होते हैं, मिक्सचर में भी। देयरफॉर आंसर विल बी द बी, दैट इज एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वैसे तो नॉन मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, एग्जांपल आपके सामने वुड है, प्लास्टिक है, लेकिन बेटा ऐसी नॉन मेटल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। आपने पेंसिल का लेड देखा है, ग्रेफाइट होता है वो ग्रेफाइट। इसके अलावा जो सेल आते हैं निप्पो वगैरह के, उसमें भी ब्लैक कलर की रोड निकलती है, आपने देखा हो, वो भी ग्रेफाइट होता है। बेटा ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ होता है, कार्बन का ही बना होता है ग्रेफाइट, प्योर कार्बन होता है। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, देयरफॉर आंसर विल बी द सी, दैट इज ग्रेफाइट। आई होप गाइस क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्रिपरेशन करिएगा और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।
Good morning students, I Neetu Yadav, your science teacher, welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, as per order by Director Sir and Chairman Sir, we can start a new pattern for your study which is also better for your competitive exams. So students, in this new pattern you study about competitive exams related to different subjects. In science students, you study through a model or through a practical basis which you can perform easily at your home. So students, we all know that study through model or on practical basis can understanding things better. So students, in today's video, which is for class 6 to class 9th, I draw a model of animal cell. So students, about animal cell, we have to first know about cell. Students, we all know that cell is a structural, functional and fundamental unit of life. जो आपका सेल है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. जो सेल है क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. एंड all organism we can say that are made up of cells. So students, all organism are made up of cells, so we can know that so in this definition we can assume or say that cell is very important function of our life. So cell is categorized into two categories, plant cell and animal cell. So students, in today's video we study about animal cell. Animal cell are eukaryotic cell, meaning they have a true nucleus and a specialized structure called organelles that carry out different function. जो एनिमल सेल है क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं. इसका मतलब होता है उसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है और स्ट्रक्चरल सेल होता है. जैसे आपने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेडिस, इंटरप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है सेल के अंदर प्रेजेंट है. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर एनिमल सेल मॉडल प्रिपरेशन. सो स्टूडेंट्स, योर टुडेज टॉपिक इज a model on animal cell. Your today's topic, or you have to make a model on animal cell. So to make this model of animal cell you require different kind of things. Let's see the item which are required to make this model. So students, you require a cardboard paper. This cardboard paper is required to make a base of animal cell. एनिमल सेल के बेस को नीचे जिसके मजबूत के लिए हम एक कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, इसकी कटिंग हम इस टाइप शेप में करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आपको रिक्वायर होगी सीज़र. आपको सीज़र की ज़रूरत होगी. फेविकोल या फेविक्विक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप. ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं. सैलो टेप. सैलो टेप इज़ रिक्वायर्ड टू पेस्ट द items on paper. Carryons, wax carryons, and you also used stick carryons. Colorful. If you make a bright animal cell diagram or model, you have to require colors to make it more attractive. A pencil to draw over parts of animal cell. Students, you also requires paper. I only have available white paper and a yellow paper in which I have draw its naming. You can also use colorful paper. Okay students, these are the items which are required to make this model. On cardboard paper you can make a shape like that. Okay, एंड देन कट इट. इसकी शेप आपको इस करनी है, उसके बाद काटना है. काटने के बाद क्या करना है, आपको इसको साइड में रख देना है. देन यू टेक अ वाइट सिंपल पेपर. वाइट सिंपल पेपर करके आपको उस कटिंग के ऊपर क्या करना है, एकदम से रैप करना है. रैप करने के बाद क्या आपका बेस वो तैयार हो जाएगा. नाउ ऑन अ सिंपल वाइट डायग्राम, वाइट पेपर, यू कैन ड्रा डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. Like I draw Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, nucleus and mitochondria cut all this diagram and then coloring it. After cut and coloring it, you can see this like structure. आपकी एनिमल सेल की सभी कट करने के बाद आपको उसको पेस्ट करना है अपने बेस के ऊपर. एनिमल सेल का जो बेस आपने तैयार किया है पहले से,
उसके ऊपर। उसके बाद आपको उसकी आउटलाइन करनी है। आउटलाइन करने के बाद स्टूडेंट्स यू हैव टू ड्रा और नेम द डायग्राम। लाइक आई हैव ऑलरेडी named the different naming of animal cell. You can simply use white paper and then can paste on the naming of diagram or parts of the animal cell. So students, let's paste this on our model. So students, after pasting the labeling of every part of the animal cell, your model will look like that. So now students, I have to tell you about each naming or each part of the animal cell have show a similar or a function of animal cell. So students, first of all we have to start with cell membrane. The outer covering of the animal cell is cell membrane. Cell membrane is a thin layer of protein and fat that surrounds cell. Cell membrane is semi-permeable. It allows some materials to pass through them and also block some materials. Some materials can pass through cell membrane, but some materials can't pass through cell membranes. Next is cytoplasm. Cytoplasm is all this is cytoplasm. Cytoplasm is jelly-like material outside the cell. सेल के बाहर एक cytoplasm एक jelly-like structure होता है. Nucleus in which organelles are located. अब jelly-like material outside the cell nucleus, जो cell nucleus है उसके outside एक jelly-like structure होता है cytoplasm. जैसे आपका nucleus है, nucleus के साउंड में ये cytoplasm jelly-like structure होता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. तो ये जो आपका है, आपका ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आर स्फेरिकल और रोड शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर with in which mitochondria converts energy stored in glucose into ATP for the cell. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट्स एनर्जी स्टोर्ड इन जो ग्लूकोज में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे कन्वर्ट करता है इनटू ATP फॉर्म. ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिससे आपको सेल को क्या एनर्जी मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स न्यूक्लियस और न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस क्या है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस है जो एक ऑर्गेनल है विद इन न्यूक्लियस. इट इज़ वेयर राइबोसोमल RNA इज प्रोड्यूस. राइबोसोमल मतलब RNA जहाँ बनता है वो न्यूक्लियस वो साइट है, और जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. देखिए ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. और आपका न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस का एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका न्यूक्लियस भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. न्यूक्लियस कंट्रोल मैनी फंक्शन ऑफ सेल एंड आल्सो इट कंटेन्स DNA. आपका न्यूक्लियस तो RNA कंटेन करता है, लेकिन जो न्यूक्लियस है काफ़ी फंक्शन ऑफ सेल करता है, और उसके अंदर DNA भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है आपका राइबोसोम. ये ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मॉडल के अंदर, सेल एनिमल सेल के मॉडल के अंदर. ये क्या है? राइबोसोम. राइबोसोम आर स्मॉल ऑर्गेनल्स कंपोज्ड ऑफ RNA विथ रिच साइटोप्लाज्मिक ग्रैन. आप क्या कह रहे हैं? जो RNA है, राइबोसोम है, उसमें क्या होता है? छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और ये किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है आपका गोल्गी एपरेटस. गोल्गी एपरेटस और लाइजोम. जो आपका गोल्गी है और गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज़ भी बोल सकते हैं. ये आपका गोल्गी क्या है? एपरेटस है, बॉडीज़ है. जो गोल्गी बॉडी होती है वो क्या करती है? एक फ्लैटेंड लेयर होती है सैक लाइक ऑर्गेनल लोकेटेड नियर न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस है उसके पास एक गोल्गी बॉडी है, वो क्या है? प्रेजेंट होती है, जो सराउंड करती लाइसोसोम के से सराउंड होती है.
जो गोल्गी बॉडीज़ होती है, गोल्गी अपरेटस होते हैं, वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पैकेज करते हैं इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को बाउंड करके रखता है, पैकेज करके रखता है एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल में, और फ्रॉम एक्सपोर्ट द सेल, और सेल से उसको बाहर एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, ये गोल्गी बॉडी का क्या काम होता है? एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होती है, और ये प्रोड्यूस मेम्ब्रेन दैट सराउंड आई का लाइसोसोम। जो गोल्गी अपरेटस है एक मेम्ब्रेन को है प्रोड्यूस करती है जो लाइसोसोम के सराउंड होता है। ठीक है, तो अब लाइसोसोम का क्या काम होगा? लाइसोसोम का काम होगा राउंड ऑर्गेनल, ये भी राउंड गोल स्ट्रक्चर होती है। देखिए ग्रीन लाइक जो स्ट्रक्चर है आपकी इसमें, ये क्या है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम है वो राउंड ऑर्गेनल होती है, सराउंड बाय ए मेम्ब्रेन कंटेनिंग डाइजेस्टिव इंजाइम। लाइसोसोम्स होते हैं वो एक डाइजेस्टिव इंजाइम मेम्ब्रेन है उससे सराउंड होते हैं, उसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम कंटेन करते हैं लाइसोसोम। और ये जो लाइसोसोम होते हैं वो पार्ट होता है एनिमल सेल का जिसके अंदर जो सेल न्यूट्रिएंट्स है वो डाइजेशन होते हैं वहाँ पे टेक्स प्लेस करते हैं, या फिर जो डाइजेशन होता है सेल न्यूट्रिएंट्स का वो लाइसोसोम के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये लाइसोसोम का काम है। आपका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का हो सकता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके न्यूक्लियस के सराउंडेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये आपका जितने भी पार्ट्स हैं एनिमल सेल के उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है ईजिली। दिस इज़ द मॉडल ऑफ एनिमल सेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। Hello students, welcome again in English class of 9th, and we are doing our grammar topic, and in grammar topic we have taken tenses, and in this video we are going to start our present continuous tense. In the previous video we have completed our simple present tense, means present indefinite tense. First of all, I want to tell something about the present continuous tense. Continuous meaning यानी लगातार जारी रखना। इसका दूसरा नाम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं हम इसको। किसी भी कार्य में लगातार बढ़ोतरी होना और उसमें कंटिन्यूटी रखना, यानी शुद्ध मायने में हम बेटा ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि इसमें उस कैटेगरी के सेंटेंस आते हैं जो वर्तमान समय में कुछ समय के लिए बोलते वक्त चलते रहते हैं। जैसे इस वक्त मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ, इट मीन्स इट इज़ द कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि लगातार काम प्रोग्रेसिव है, तो इसे हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं और कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मैंने यहाँ पर डाली है, यानी इसकी पहचान आपको अच्छी तरह समझ में आए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए हिंदी वर्डों का भी इस्तेमाल किया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। इस टेंस से संबंधित अगर हम वाक्य का जब हिंदी में अनुवाद किया जाता है, फिर देख लीजिए बेटा, इस टेंस से संबंधित वाक्य का जब हिंदी में अनुवाद किया जाता है तो अंत में रहा है, रही है, रहे हैं की आवाज़ आती है। और ये शायद आप लोग 6th, 7th, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने बेटा यहाँ पर लिया है, वह एक नया मकान बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी नया मकान बना रहा है, अभी वो बनके कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अंत में हमारा यहाँ पर रहा है, जिससे हमें ये इंडिकेशन मिल गया है कि कार्य जो है वो प्रोग्रेसिव है और हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऐसे वाक्य को जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें कुछ रूल्स की आवश्यकता पड़ेगी बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखा है, यूज़ ING विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें जो हमारी मेन वर्ब होती है बेटा, उसके साथ हम ING का प्रयोग करते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम ING लगाते हैं। सेकेंड रूल हमारे पास है, यूज़ हेल्पिंग वर्ब इज MR, जिसे आप हिंदी में सहायक क्रिया कहते हो, इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। इज MR का इसमें प्रयोग होगा। दूसरा मैंने इनकी कैटेगरी भी आप लोगों को बताई है,
यूज़ इज का जो प्रयोग है बेटा विद हम किसके साथ करेंगे? यदि वाक्य में ही हो, सी हो, इट हो, एंड यानी और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कर्ता हमारा एक वचन हो, उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूज एम। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एम है, हमेशा हम इसका प्रयोग आई यानी हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, जब ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो हम इसके साथ हमेशा आई का प्रयोग करते हैं, आप भली बाती जानते हैं। यूज आर, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो आर है वो हमेशा यूज किसके साथ होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। आइए नीचे मैंने आप लोगों के लिए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है, यानी स्ट्रक्चर सिंपल के भी, नेगेटिव के भी, इंटरोगेटिव के भी, तीनों मैंने डाले हैं। और एक WH फैमिली से होता है वो हम बाद में करेंगे। तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसे हम सिंपल भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हो आप। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट यानी करता, फिर हमारे पास इज, एम, आर, इसमें से कोई सी एक हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम ऐड कर देंगे बेटा ING, और प्लस ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट, क्योंकि वाक्य में बिल्कुल अंत में ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है। तो ये फॉर्मेशन हमारे पास हो गई सिंपल की। नेगेटिव में हम चलेंगे, पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, और हम नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर इनके साथ प्लस नोट लगाएंगे। इस बात का ध्यान रहे, नोट हमारा HV और MV के बीच में होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ये ING है, प्लस ऑब्जेक्ट है, बाद में फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव को हम बनाएंगे वाक्य को, उसमें थोड़ा सा बदलाव है। पहले हमारी HV आ जाएगी यानी इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस हमारे पास होगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा उसके तुरंत बाद, प्लस हमारी मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में होगी यहाँ पर, उसके साथ ING हम ऐड करेंगे, प्लस हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, देख लीजिए समझ में नहीं आए थे, ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में हम साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग करेंगे। WH फैमिली के बारे में अगर हम देखें तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप WH फैमिली प्लस और पूरा हमारा ये ऐसा कैसा हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए एक सेंटेंस लिया था, जैसे ऊपर मैंने लिखा था यहाँ पे, तो उसमें जैसे हमने बनाया, तो सबसे पहले हमारे पास वाक्य हम देखेंगे बेटा, मैंने बनाया था वह एक नया मकान बना रहा है। अच्छा, जिन बच्चों को थोड़ा सी अगर दिक्कत है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वाक्य में कर्ता आता है यानी सब्जेक्ट, तो वह नया मकान बना रहा है, तो ही हमारे पास आ जाएगा, हमने ही डाल दिया, सब्जेक्ट आ गया। अब ही के अनुसार हमने देखना है कि साथ इज, एम, आर क्या लगेगा, तो अभी हमने देखा है कि भाई ही सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आएगी। मकान बनाने के लिए हमेशा हम बिल्ड मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, बिल्ड के साथ हमने ING लगा दी तो बिल्डिंग बन गया। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, ए न्यू हाउस, इसको हमने नेगेटिव में बना दिया, ही इज नॉट बिल्डिंग ए न्यू हाउस, लास्ट में फुल स्टॉप, यानी वह एक नया मकान नहीं बना रहा है, ये हो गया हमारा नेगेटिव। इंटरोगेटिव हमारे पास है, इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह हमें देखो लगाया है, सवाल पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए इज, एम, आर में से पहले, तो ही के अनुसार यहाँ पर इज फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा। इज ही बिल्डिंग ए न्यू हाउस, और लास्ट में हमने यूज कर दिया साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक हल्का सा मैंने यहाँ पर नोट डाला बेटा आप लोगों के लिए, रूल ऑफ एडिंग ING। ING का जब हम प्रयोग करेंगे तो उस समय भी हमारे पास एक नियम काम करता है जो शॉर्ट फॉर्म में मिल, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ब है वो हमारी वोवल से समाप्त होती है, यानी इससे समाप्त होती है, तो मैंने लिखा यहाँ पर मेक, MEKE, जब ING लगाएंगे तो ई जो है वो डिलीट हो जाएगा और MEKING हम मेकिंग हमेशा करेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लिखेंगे, जैसे राइट है WRITE, इसमें भी हम ING लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा WRIT और ING। इस फार्मूले को आपने याद रखना है। एक हल्का सा रूल और भी मैंने बताया आपको, जैसे स्विम हमारे पास है तैरना, तो इसमें हमने देखा कि ये M है और इससे पहले वोल है हमारे पास I। जब ING हम प्रयोग करेंगे तो डबल कॉन्सोनेंट यहाँ पर हो जाता है, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो स्विमिंग SWIMM
यहाँ पर हमने कर दिया कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया ING, तो ये हमारा हो जाता है डबल। ये रूल आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये 3 सेंटेंस मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए, चेंज इनटू नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। मैं पढ़ के बता देता हूँ। शी इज़ राइटिंग ए बुक ऑन इकोनॉमिक्स। इस सेंटेंस को आपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में कन्वर्ट करना है। माई ब्रदर इज कमिंग नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये आप इसको, ये आपका होमवर्क है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य में इसको आप कन्वर्ट करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप फिर मिलते हैं, और वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर कीजिए, और समझ में नहीं आए तो 1 बार 2 बार 3 बार इसे ज़रूर देखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रेनू, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज का सुविचार हमारा अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, यानी अपने जीवन का एक आप लक्ष्य निर्धारित कर दो और पूरे शरीर को उस लक्ष्य की ओर भर दो, यानी अपने पूरे तन मन से आप उस लक्ष्य की ओर भर जाओ, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाओ। और जितने भी आपके मन में, आपकी ज़िंदगी में दूसरे विचार हैं, उन सभी को निकाल दो। तो यही सफलता की कुंजी है। कि सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य पर लग जाइए, और बाकी जितने भी आपके मन में जो विचार हैं उन सभी को उससे निकाल दीजिए अपने जीवन से बाहर। यही सफलता की कुंजी है, और ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। बाकी का सुलेख लिखते हैं। जो बेटा हम सदाचार वाले उसमें लिख रहे थे, उसी में आगे लिखोगे आप। शिष्टाचार सदाचार का एक अंग नहीं, शिष्टाचार सदाचार का एक अंग ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन में तो वह सदाचार का पर्याय हो जाता है। देश और काल के अनुसार शिष्टाचार के नियमों में थोड़े बहुत परिवर्तन आते रहते हैं। थोड़े बहुत परिवर्तन आते रहते हैं। दूसरों के प्रति सम्मान प्रकट करना, शिष्टाचार है। पर
इसे कई प्रकार से प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जा सकता है। सदाचार तभी संभव होगा जब मनुष्य संयम, श्रमनिष्ठा, क्षमाशीलता आदि गुणों का के अभ्यास से सतत अभ्यास कर अपने व्यक्तित्व का विकास करें। तो आपको भी एक पेज राइटिंग लिखनी है। थैंक यू। Hello student, a very good morning to you all. I Benita ma'am, your teacher teaching in MLP School Rajpura. Welcome you to our YouTube channel of online classes for the cursive writing. Student, in this video we will write how we can write cursive or how we can improve our handwriting. Student, if you want to improve your handwriting or you want to do your handwriting in the best way, that you want to that every person praise you that this writing is very good, but seriously I never seen like that handwriting. So you have to do practice regular for this handwriting that are daily I provide to you in this video. Firstly we will start from our today's thought. So let's start, student. The thought is success never comes. Success never comes, student. सफलता कभी हमारे पास नहीं आती है. Around to look, हमारे आसपास हमें देखने नहीं आती है. For you, while you wait around, हमें उसका इंतज़ार करना पड़ता है. You have got to get up, हमें उसके लिए उठना पड़ता है. And work at it, और उसके ऊपर काम करना पड़ता है. To make your dreams come true, अपने ड्रीम्स को सच करने के लिए. ये स्टूडेंट जिसने भी ये बात कही है, इट इज़ वेरी वेल सैड दैट सक्सेस is not a thing that we have to get up early in the morning and we it's not a very easy thing. It's a very tough, it makes our life very tough, it makes the competitions very tough. For getting success we have to fight a lot, we have to struggle a lot. If a person is struggling from his life, then only he is able to get the success. Success never find out us, we have to find out its success, we have to work upon it. If we are having a big dream, then we have to work a lot, we have to think big, we have to do big, then only we can dream a lot, or only then we can get success. Student, so if you want to improve your handwriting, if you want to crack any exams, if you want to find your life better future, then you have to work hard and you have to prepare yourself from today, not from today, from at the same time that you are thinking. You don't have to waste your time to think upon it.
that if I'll do this, then this would happen surely. You don't have to think, you don't have to wait, you have to just work upon it. So let's start our today's writing work. Student, in today's video we will write meaning of truth. Student, what we have to write for today's cursive writing, our topic is meaning of truth. You know, student, all of us say that speak truth. But today I will tell you that what is truth. In reality, what is it? Student, truth is the most often OFTEN. Most of us says that like often. It's not often, it's often. In this word, the T letter is silent. Okay, students, so it is often used to mean MEAN, mean being in accord, 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 with fact, WITH, with fact, 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 or reality, 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 comma, or fidelity to an original, FIDELITY, fidelity to an original, or standard, or standard, STANDARD, standard. Truth may also, truth, TRUTH, truth may also, often, OFTEN, often be used in modern, MODERN, modern context, 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 to refer to an idea of, start comma, truth, to self, comma, stop, comma, or authenticity, AUTHENTICITY, authenticity. In simple way, we define truth like this, continue, like this. Truth, TRUTH, truth is that which is concerned, which is consistent with the mind,
will, character, glory, and being of God. And being of गॉड. स्टूडेंट ट्रुथ क्या होता है? देखिए, सच. हम अक्सर कहते हैं स्टूडेंट्स स्पीक ट्रुथ, यू विल नेवर पनिश्ड. इट इज़ द रियलिटी. वास्तविकता होती है, दैट इज़ द फैक्ट. जो भी सच बातें होती हैं किसी भी ओरिजिनल, किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड लेकर आती हैं. ट्रुथ में भी ऑल्सो ऑफन बी यूज्ड इन मॉडर्न कंटेक्स्ट टू रेफर एन आइडिया ऑफ, मीन्स किसी के आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, उसको बताना. ट्रुथ टू सेल्फ, अपने आप से सच बोलना. देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग दैट रिलेट्स टू द ट्रुथ. इफ सिंपल वे में हम बात करें, वी कैन डिफाइन इट लाइक दैट इट रिलेट्स विद द माइंड, इट रिलेट्स विद द विल पावर, इच्छा हमारी जो होती है. कैरेक्टर, वो किसी के कैरेक्टर को भी डिपिक्ट करता है. ग्लोरी, किसी का शान, गौरव, वैभव. बीइंग ऑफ गॉड, इवन सच, जो गॉड होते हैं उनको भी ये डिपिक्ट करता है. सो स्टूडेंट, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ एंड यू विल बी श्योरली एंड डेफिनेटली, आपको दूसरे लोग भी प्रेज करेंगे. यू विल बी श्योरली प्रेज्ड बाय एवरीवन. सो थ्रू दिस वीडियो आई एंड अप माय क्लास. हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स. Hello student, welcome to your online classes of MLP School Rajpura. I Priyanka ma'am. Today's session I will tell you some basics of computer in MS Word. Student, you know very well in today's time computer is very important part of our education. So you know very well everyone wants to learn how to start, how to turn off and how to working with computers. So our school providing you some basics knowledge of computer. So student, you have to see the complete video and according to the video you have to practice on your laptop or computer system. So student, without delay my time, I will start your topic. Hello student, in this video I tell you the page layout menu bar of MS Word. In previous video we completed home and insert menu bar. Okay, now start. Page layout में first I tell you how to change the color of page and page border. Then click on page color. Here you have to select any color in the background of the page. You see in the background of the picture there will be a picture show of color change. Like that you can select any color from here. Our next option is page border. How to set border of the page. Here click on page border. Then you have to click art. You can select here from any border like that. Select and click on OK. Now you see there will be a border in the page. Okay, that make your page more attractive. Our next option is watermark. How to set watermark. Click on watermark. Then click on any document, confidential 1, 2. Now click on custom watermark and here we set. अगर आपको पेज के बैकग्राउंड में पिक्चर सेट करनी है तो यू हैव टू सेलेक्ट पिक्चर वाटरमार्क. अगर आपको टेक्स्ट राइट करना है तो यू कैन सेलेक्ट टेक्स्ट वाटरमार्क. वी वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट watermark. Then click on that icon and set here text. You have to write your text you want to write. Here I write my name Priyanka. Then click on apply. Okay. If you want to set diagonal C means होता है जैसे टेढ़ा आपको सेट करना हो, horizontal आपको एक स्ट्रेट लाइन में सेट करना हो अपना जो वाटरमार्क है वो, यू कैन सेलेक्ट एनीवन. तो हमें डायगनली शो करना है तो यहाँ पे करके और फिर उसको अप्लाई पे क्लिक कर दो. देन क्लिक ऑन ओके. हेयर यू सी इन द बैकग्राउंड ऑफ द पेज यू सी प्रियंका. You can color the change of the watermark like that. Now by clicking on that, अगर आपको font change करना हो तो you can select the any font from here.
For size, you can click on size, or for change color, you can click on color. You can set any color. Okay, now next one is picture watermark. Click on picture watermark, select any picture from library. For example, you have select this picture. Okay, then click on insert and click on OK. Now here you see the picture of tiger in the background of the page. Next option are left, right, before, after. These options are used for when you are typing a paper, and these all are orientation, size, columns that help you in paper typing. Okay, so these are studied in next classes. Dear student, practice all these functions at your home using computer system and laptop system. I hope you use these functions. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पे और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। इसके लिए हम कुछ टॉपिक कर रहे हैं जो आपके नवोदय, सैनिक विद्यालय जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं, तो उसी से संबंधित हम कर रहे हैं मुहावरे। तो मुहावरों को हम आगे करते हैं। कल हमने 5 मुहावरे करे, उसी के आगे करते हैं आगे। 6 मुहावरा है हमारा। अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना। अंग अंग मुस्काना का मतलब है बहुत प्रसन्न होना। मेधावी छात्रों की सूची में अपना नाम देखकर महेश का अंग अंग मुस्कुरा रहा है। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है आत्मनिर्भर बनना। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओगे तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तो वाक्य में प्रयोग इसका कि जब तुम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओगे तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। तुम्हारी जली कटी बातों ने सरिता के क्रोध की आग में घी डालने का काम किया है। आग में घी डालने का मतलब होता है कि क्रोध को भड़काना, और इसका वाक्य में प्रयोग है कि तुम्हारी जली कटी बातों ने सरिता के क्रोध की आग में घी डालने का काम किया है। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ है बहुत ऊंचा होना। आजकल मुंबई की भव्य इमारतें आसमान से बातें करती जान पड़ती हैं। आजकल की मुंबई की भव्य इमारतें आसमान से बातें करती जान पड़ती हैं। 10वां, आकाश पाताल एक करना। इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग, परीक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ता है। परीक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ता है। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखें बिछाने का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। नेताजी के स्वागत में जनता आंखें बिछाए खड़ी थी। नेताजी के स्वागत में जनता आंखें बिछाए खड़ी थी। आंखों में धूल झोंकना, वाक्य में प्रयोग धोखा देना, इसका अर्थ है धोखा देना। वाक्य में प्रयोग, तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आस्तीन का सांप होना, अर्थ है इसका विश्वासघाती मित्र। आस्तीन का सांप होना, विश्वासघाती मित्र। राकेश से बचकर रहना क्योंकि वह पूरा आस्तीन का सांप है। राकेश से बच के रहना क्योंकि वह पूरा आस्तीन का सांप है। इधर उधर की हाँकना, अर्थ है इसका व्यर्थ की बातें करना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। तुम हर समय इधर उधर की हाँकते रहते हो, कुछ काम किया करो। तुम हर समय इधर उधर की हाँकते रहते हो, कुछ काम किया करो। 19-20 का अंतर होना, थोड़ा अंतर होना। 19-20 का अंतर होना, इसका अर्थ है थोड़ा अंतर होना। रमेश और उसके भाई की चालाकी में केवल 19-20 का अंतर है। रमेश और उसके भाई की चालाकी में केवल 19-20 का अंतर है। तो एक बार फिर से देख लो बेटा। अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना। यानी मेधावी छात्रों की सूची में अपना नाम देखकर रमेश का अंग अंग मुस्करा दिया। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर बनना। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओगे तभी मैं तुम्हारी बात
मानूंगा। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। वाक्य में प्रयोग, तुम्हारी जली कटी बातों ने सरिता के क्रोध में की आग में घी डालने का काम किया। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आजकल मुंबई की भव्य इमारतों से बातें करती जान पड़ती हैं। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। अर्थ है इसका परीक्षा में बहुत परिश्रम करना, और वाक्य में प्रयोग है, परीक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ता है। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। नेताजी के स्वागत में जनता आंखें बिछाए खड़ी थी। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। वाक्य में प्रयोग, तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आस्तीन का सांप होना, विश्वासघाती मित्र। राकेश से बचकर रहना क्योंकि वह पूरा आस्तीन का सांप है। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। तुम हर समय इधर उधर की हाँकते रहते हो, तुम कोई काम किया करो। 15 है हमारा 19-20 का अंतर होना। अर्थ है इसका थोड़ा अंतर होना, 19-20 का अंतर होना यानी थोड़ा अंतर होना। जैसे रमेश और उसके भाई की चालाकी में केवल 19-20 का अंतर ही है। इसका और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे किसी कलर के लिए, रंग के लिए होता है कि दोनों में 19-20 का अंतर ही है। तो आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं और नोट करने हैं। थैंक यू।